السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ سورہ انفال آیا نمبر 42 ہوا تھا، لیکن تھوڑا کچھ ایکسپلینیشن تھا شاید۔ کیا ہے؟ اذ انتم بالعدوۃ القصویٰ، ادوا بولے تو کیا؟ ادوۃ الدنیا، یہ شاید زیادہ نہیں آیا ہے یہ ورڈ، کنارے پر، یعنی وہ تم پرلے کنارے۔ یہ نقشہ پھر بیان کیا جا رہا ہے کس کا؟ بدر کا۔ جنگ بدر میں جیسا پوزیشن تھی، لشکر کیسا کیسا تھے، مورچے کیسا تھے، آمنے سامنے لشکر کیسا آ گیا، مٹ بھیڑ کیسا ہو گئی، یکایک ہو گئی۔ اگر ہو نہ بولے تو وہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں ہیں۔ وہ کرنا تھا ان کو، سٹاپ کرنا تھا ان کا مال، وہ جو لے کر جا رہے تجارتی قافلہ، اس کو روکنے کا یہ تھا۔ پہلے بھی روکا گیا تھا، کچھ مہینے پہلے جب وہ جا رہے تھے تجارت کے غرض سے جا رہے تھے شام کی طرف، تو انہیں روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن تب ابو سفیان جو امیر قافلہ تھے، وہ ان کی سمجھ بوجھ سے وہ بچ کر نکل گیا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، نہیں کر سکے وہ۔ اب جب پتا چلا کہ 50,000 اشرفیوں کا لے کر آ رہے ہیں مال، تو اب روکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جنگ کا اعلان ہی نہیں ہے، جنگ کا اعلان ہوتا تو سب کو عام اعلان ہوتا کہ سب چلو جنگ ہے، جنگ کرنا ہے، یہ نہیں تھا، صرف روکنے کے لیے تھا۔ تو کسی کے پاس تلواریں تھی، کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 اونٹ تھے۔ اب وہ ان کا اونٹ بولے تو انہوں ہی سوار ہونا نہیں، اب باری باری سے سب سوار ہوتے، کوئی چلتا تھوڑی دور ایک منزل، کوئی چلتا پھر کوئی سوار ہوتا، ایسا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو سب تھکے ماندے، کم آئے گی کا شکار، تو یہ حالت تھی جنگ کی۔ اگر ہو نہ بولے تو ہو نہیں سکتی تھی جنگ۔ اگر طے کرتے ہیں کہ چلو آپس میں یہ لشکر یہ ٹائم پر آئے گا، یہ ٹائم پر ہم جنگ میں آئیں گے، لشکر کے آمنا سامنا ہوگا، کنفرنٹیشن ہوگا، یہ اگر ہوتا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ نے کر دیا، تمہیں آپس میں ٹکرا دیا، بس ٹکرا ہی دیا۔ اب مرنا یا مارنا ہے، جنگ میں آ گئے تو کیا ہے؟ ایک تو آرڈرلی ریٹریٹ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، متحرفن یا متحیزن، یہ 2 ہی ہیں۔ یا ریٹریٹ لیے تو کیا ہوتا ہے؟ واجب القتل، سر تن سے جدا، جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، جنگ سے پیٹ پھیر رہے تو سر اڑا دینے کا ہی۔ تو اب یہ جو ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس انتم بالعدوۃ الدنیا، اب جو یہ ہے تم کس پوزیشن پر تھے جنگ میں، تمہارا پوزیشن کیا تھا، تمہارا مورچہ کیا تھا، لشکر کا آمنا سامنا کیسا تھا۔ ایک تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالائی مقام پر تھے، جو مدینے سے قریب تھا، مدینے سے جو قریب تھا وہ حصے میں جنگ بدر، یہ جنگ بدر، بدر کے مقام پر۔ بدر کا مقام کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اور وہ بدر کا کنواں کسی بدر نامی آدمی نے کھودا تھا، بدر اس کا نام بدر تھا، اسی کے نام سے کنواں منسوب ہو گیا، اور اسی نام سے جس میدان میں وہ کنواں تھا وہ میدان کا نام بھی بدر ہی پڑ گیا۔ اب یہاں کنفرنٹیشن 2 لشکروں کا ہو رہا ہے، ایک تو وہاں سے جو آئے ہیں وہ کفار کا لشکر، اور وہ توزن پر مشتمل ہے اور کیل کانٹے سے لیس ہے، ہر چیز ہے۔ ایسا کبھی دیکھنے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا شاذ ہی ہوا کرتا تھا، بہت کم ہی ہوا کرتا تھا ایسا، جب ایک لشکر مکے سے چل کر مدینہ آ رہا ہے اور اتنا بڑا جمع غفیر ہے، تو لوگ دیکھ رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کیا تھا، کفار قریش مکہ کا، کفار کا لوگوں پر دھاک بیٹھ جائے،
हमारा करो फर, हमारी शान और शौकत, हमारा दबदबा, हमारी आन बान, ये सब लोगों में इसकी धाक बैठ जाए। ये था इनके पास, मगरूर था, गुरूर था, इनके पास गुरूर था। इज्जत इनके सारी नहीं थी, गुरूर पर मुर्तकिब था, ये सब गुरूर पर मुश्तमिल था। और सब आ रहे थे, इनके पास डोल ढमक्का भी था, लौंडियां भी थी, गुलाम भी थे, वो ढोल बजाने भी थे, नाचने गाने वालियां भी थी, ये सब कुछ था। और लश्कर कितने ऊंट थे, खाने के लिए भी होना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा पूछा कि ये लश्कर कितने पर मुश्तमिल है, कि ये कोई बता नहीं सके कि कितना है क्या है। तो आप इतनी दानिशमंदी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुर्बान जाए, तो आप पूछते कि हर रोज जंग लश्कर के खाने के लिए कितने ऊंट ज़बा होते। तो लोग बोलती हैं कभी 9 होती, कभी 10 होती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगा लिया कि अच्छा 900 और 1000 के दरमियान है। तो क्या हिसाब हुआ, तनासुब क्या हुआ, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, ये 100 कौन आदमी सौ पे आदमी, 1 ऊंट। पर 100 आदमी 100। हो गया नहीं। अब उससे 9 से ज़रब दो या 10 से ज़रब दो, हो गया 1000 या 900 का है। तो हुजूर को एक पता चल गया था, लेकिन फिर भी अल्लाह यहाँ आयतों में, आगे की आयतों में कह रहा है कि तुम्हें उतनी की तादाद नहीं बताई गई। नौम में, तुम्हारी नींद में, एक ख्वाब की हालत में जो तुम्हें दिखाया गया जंग का नक्शा, उसमें दिखाया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अबू जहल कहाँ मरेगा और दूसरा सरदार कहाँ मरेगा, कौन कौन कहाँ कत्ल होगा, ये सब दिखाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक्स्ट डे जब सुबह सुबह मोर्चे संभाल रहे थे और वहाँ वो जो बराबर कर रहे थे, सबको सफीम बांध रहे थे, तो तब बताया कि यहाँ अबू जहल कत्ल होगा, यहाँ ये सरदार कत्ल होगा, यहाँ ये सरदार कत्ल होगा, इसकी जाए कत्ल ये है, ये बताया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कम दिखाया अल्लाह ने ये 1000 का लश्कर नहीं दिखाया, कम दिखाया। तो कोई उतनी बुजदली का, उसने कम हिम्मती का, पस्त हिम्मती का शिकार होने की जरूरत नहीं थी। अच्छा कम ही है, हम बेसाजो सामान हैं, तो भी अल्लाह के भरोसे हम चलेंगे, हो सकती है जंग, कतराने की जरूरत नहीं थी, जंग से पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। तो अल्लाह यहाँ जंग के मुताल्लिक बता रहा है कि वो वक्त याद करो जब तुम लोग वादी के करीब वाले किनारे पर थे। क्या वर्ड यूज हुआ है? उदवा, उदवती दुनिया। दुनिया किसे बोलते हैं? यहाँ दुनिया से मुराद दुनिया नहीं है। दुनिया का मतलब क्या, दुनिया का लफ्जी मतलब क्या? अदना, 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 खत्म। दून, दून, दून से अदना। अब दुनिया को दुनिया इसलिए कहा जाता है कि ये करीब है। क्या दूर है हमारे से, क्या दूर है? उखबा दूर है, आखिरत दूर है, दूर है। मरने के बाद है। मरने के बाद भी एक जिंदगी हम बरज़खी जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद उखबा में जाते हैं, आखिरत बाद में है। जन्नत दोज़ख वो सब फैसला बाद में होता है, पूरी दुनिया खत्म होने के बाद होता है, रोजे महशर बर्बाद होता है। तब तक दुनिया चलती रहती है। ये दुनिया का कितना पीरियड है, 1.5 डे का डे की बात है, वो भी खत्म होता आ रहा है। अब अल्लाह को मालूम, वल्लाहु आलम तो कब बर्पा होगी क़यामत, कब बर्पा होगी, रोजे महशर कब होगा। तो ये दुनिया चूंकि करीब है, इसलिए इसको दुनिया कहा जाता है। अब यहाँ दुनिया से मतलब क्या है? करीब। तुम मदीने से करीब के परले हिस्से पर थे, परले किनारे पर। ये किनारा जिस पर तुम्हारा लश्कर ठहरा हुआ था, वो मदीने से करीब था। उदवतित दुनिया, वो हम बिल उदवतिल खुसवा। और उनके मुताबिक हम जमीर किसकी तरफ है? वो कुरैश मक्का का जो लश्कर आया था, उन्हों का थे उदवा, किनारा। कौन सा किनारा? वो थोड़ा उधर दूर का किनारा था। बिलगुदवा किनारा, खुसवा परला उधर का, वो उनको करीब था। मक्के से करीब के किनारे पर उन्हों थे, कुरैश मक्का, और मदीने से करीब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ का लश्कर था। मीर कारवां, मीर काफिला, मीर लश्कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ, और वहां मीर लश्कर कौन? अबू जहल, अबू जहल की सरकदमी। अब बीच में एक और बात है, असफल की बात भी है। नीचे, नीचे कहाँ? साहिल की तरफ से गुजरने वाला लश्कर, वो किसका है? वो काफिला है। मेरे कारवां उसका अबू सुफियान है। और वो कौन सा है? तिजारती काफिला है। अब ये तीन चीजों की बात हो रही है। बिल
उद्वतिल खुस्वा, परले किनारे पर वो थे। वर रकबो, रकब कौन और वो काफिला, पूरे काफिले की बात है। असफला नीचे, नीचे बोले तो ये ऊपर वाला ही हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर का, उसके थोड़ा नशीब में आने वाला लश्कर कुफार का, उसके आगे जाकर जो साहिल का एरिया है, कोस्टल एरिया कभी भी नीचे ही होता है ना, अल्टीट्यूड पर कहाँ होता है, नीचे ही होता है। तो इन्हों क्या करे थे, अबू सुफियान ने क्या किया, एक बड़ी चालाकी से काम लेकर पहले तो पैगाम भेज दिया कि हमें काफिले पर हमलावरी का और लूट जाने का डर है, तुम आओ हमारी मदद के लिए। वहां से तैयार हो गए थे, सब तैयार हो गए थे, लेकिन दरमियान में इन्होंने क्या सोची एक चाल कि यहाँ 3 रास्ते हैं, मदीने से होकर भी एक रास्ता जाता है, लेकिन एक और रास्ता है जो साहिल से गुजर कर भी हम चले जा सकते हैं। तो साहिली ये चक्कर काट के आना, थोड़ा बड़ा रास्ता, तो साहिली इलाका, साहिली किनारा अलोंग दी कोस्टल एरिया, वो रास्ता लेकर इन्होंने निकल लिया, अपने काफिले को सही सलामती से बचा कर चले गए। तो यहाँ जिक्र आ रहा है और रकबू, वो काफिला असफला नीचे, मिनकुम तुमसे नीचे था वो, वलो और अगर तवा तुम बाहम वादा करते। अब ये बात दूसरी आ गई, बाहम वादा किसका करते, एक तो 3 काफिलियां का बात आ गया, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला, एक उनका लश्कर, एक इस्लामी लश्कर, एक कुफार का लश्कर, और एक तिजारती काफिला जो जा रहा है चला गया। अब तीसरी बात ये आ रही है कि अगर तुम जंग की बात करते, दोनों में कन्फ्रंटेशन का ये टाइम, कल ये टाइम पर सुबह 7 बजे या सुबह फजर के बाद हम यहाँ आकर जंग के लिए यहाँ मोर्चा संभालेंगे, यहाँ हमारी जंग शुरू होगी, फजर के बाद शुरू होगी या कोई टाइम पर शुरू होगी, अगर ये तुम वादा करते तो तुम इसका ज़ाबिता नहीं निभा सकते थे, ऊंच नीच हो जाती, आगे हो जाता या पीछे हो जाता, तुम वादा पूरा नहीं कर सकते थे। और अगर तुम बाहम वादा करते, लाख्तलफ्तुम, अख्तलफा, अख्तलफा इख्तलिफू, इख्तिलाफ हो जाना, बाहम इख्तिलाफ हो जा सकता था, यानी कमसरस हो जाता, कोई पहले पहुंचता, कोई बाद पहुंचता, किसी को वेट करने की जरूरत पड़ जाती। ऐसा नहीं हुआ, कैसा हो गया, अल्लाह ला कर खड़ा कर दिया, दोनों लश्करों को कन्फ्रंट करा दिया। वरना अगर सोच समझ कर आते तो उनको भी दिखाया था अल्लाह, उनके भी तस्वुर में था कि मुसलमानों का लश्कर है ज्यादा ही, उनको छोटा लश्कर नहीं बताया गया था, उनके दिमाग में भी, उनके दानिश में भी ऐसा था कि मुसलमानों का लश्कर भी बहुत ज्यादा है। उनको नहीं मालूम था ये रोकने आ रहे, इनके पास कुछ भी नहीं है, उनको नहीं मालूम था, उनके दिमाग में भी ऐसा ही था, वो भी कतरा जाते, अरे इतने बड़े लश्कर से क्या टकराना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ही हैबत थी उनके दिलों पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तासुर था, एक ये था, मुकाम था जिससे वो रोब खाते थे, मरगूब थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये पहले भी था, ये सताते थे, लेकिन था, मुकाम तो था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो आगे आने से कतराते। और ये तो थे ही कम, इन्हों तो जरूर बच जाने की कोशिश करते हैं, इन्हों तो जरूर कतरा जाते। तो वक्त पर पहुंचने का अगर तुम वादा करके जाते तो इख्तिलाफ हो सकता था, अलबत्ता तुम इख्तिलाफ कर बैठते, कोई पहले जाता, कोई लेट जाता, कोई कतराता। फिल्मी आद, वादे में ऐसा हो सकता था। वलाकिन लियखज़ी अल्लाह, अल्लाह ने इसको फैसला कर दिया। खजा यखजी बोले तो फैसला करना, यानी कोई चीज को पूरा कर देना, अल्लाह ने पूरा कर दिया, ये ला के खड़ा दिया, तुम्हें जंग में डटा दिया, वरना तुम नहीं आते थे। लियक्सिया, ताकि पूरा कर दे अल्लाह, अम्रन काना मफूला, इस बात पर गौर करना है, अल्लाह के मंसूबे में कोई बात है। मफूला किसे बोलती, मफूल उर्दू में बोलिए, मफूल, फायल मफूल, फेल फायल मफूल, फेल वो है वर्ब, फायल काम का करने वाला, मफूल क्या है, काम होना, किसी काम का होना, अल्लाह के मंसूबे में, अल्लाह के प्लान में किसी काम का होना है, अल्लाह के इल्म मुहीत में है, इल्म कदीम में है, अब वो कर गुजरना है, वो हो गुजरना है।
تو اس واسطے اللہ کیا کریا دونوں لشکراں کو کنفرنٹ کرا دیا. مفعولا بولے تو کسی چیز کا ہو جانا. اب عربی میں کیا ہے بولے تو عربی میں ماضی ہے اور مضارع ہے، حال نہیں ہے. حال آپ غور کریں تو حال نہیں ہے. حال کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس. پریزنٹ اعتبار میں ہے. عربی میں اس کا یہ زیادہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ عربی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب جو یہ پریزنٹ ہے نا، یہ منٹ اب میں جو بات کر رہی ہوں یہ ہو گیا نہیں، ماضی کو چلا گیا نہیں، اب چلا گیا. اب جو ہے مضارع کا ہے، آنے والا مضارع کا یا تو مضارع ہے. تو آپ ہر امر میں ہر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہو گیا سینس میں آتا ہے، نہیں ہو چکا کے صیغے میں آتا ہے. محشر کا بیان کر رہا ہے تو بھی ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہو چکا. قیامت کا آ رہا ہے تو بھی ایسا کیا ہو چکنے کے اس میں ماضی کے سینس میں آتا ہے. یعنی آپ جیسا ہمیں بولتی نا، کوئی کام کسی نے مجھے کہا تو میں کیا کہوں گی؟ انشاءاللہ بھی بولتی، لیکن کیا بولتی؟ ڈن، ہو چکا. اچھا سمجھو کہ ہو چکا. یعنی اتنا اہتمام، اتنا پکا یہ اللہ کا یہ تو یہ ایسا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کہہ رہا ہے کہ لیحصی اللہ، تاکہ پورا کر دے اللہ، امرن کانا مفعولا، اللہ کا ایک کام ہے جو ہونا ہی ہے، مفعولا ہو کر رہنے والا ہے. اب اردو میں ہم کہیں گے تو شدت کے ساتھ ہو کر رہنے والا، ہو جانے والا، کر گزرنے والا بولتے نا، اس ٹائپ کا ایک یہ فیصلہ تھا اللہ کا کہ یہ یوم فرقان ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک اب آہستہ آہستہ کام کرنے سے چھوٹے چھوٹے معرکے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے، ادھر ادھر بھیجا کرتے تھے کسی صحابی کی قیادت میں، 8-10 آدمی پر مشتمل، 20 آدمی پر مشتمل، 30 آدمی، اب اس سے کم نہیں چلے گا. اب ایک دم میان سے باہر نکلنا ہے تلوار. اب نکلے تو اب برابر کنفرنٹیشن چلنا ہے، اسلامی ریاست قائم ہونا ہے، اسلام کو بننا ہے، اسلام کی اشاعت ہونا ہے. اب اس سے چھوٹے موٹے کاموں سے کام نہیں چلنے والا. تو اللہ کیا کریا؟ یہ اللہ کے علم میں قدیم میں تھا، یہ ہونا ہی تھا، تو یہ کر گزرنا تھا. اللہ کر گزریا، یہ مفعولا ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا جو ہلاک ہونے والا ہے انہوں ہلاک ہو جائے. اب یہ بتا دیا اللہ، یوم فرقان کر دیا. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ نبی برحق ہیں. اب نبی کے اوپر بھی ان کو یہ تھا کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں، سچے نبی ہیں کہ نہیں. علماء یہود بولتے تھے اگر سچے ہیں تو ان سے یہ پوچھو، روح کا پوچھو، ذوالقرنین کا پوچھو، ایسا پوچھو تو معلوم ہو جائے گا تمہیں یہ نبی برحق ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ برحق ہو جانا تھا، نبی برحق ہے وہ دکھانا تھا، کتاب برحق ہے وہ دکھانا تھا، یہ اسلام برحق ہے، یہی دن ہے، اس کے علاوہ کوئی دن ہے نہیں ہے. اب یہ بھی مفعولا، یہ بھی ہو کر رہنا تھا. تو اللہ یہاں بینات بتا کر کے یہ سب برحق ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ نصرت بھی جو اللہ دے رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے. تو آپ جو بھی یہ سارا سب کچھ بیانات دیکھ لینے کے بعد، اس کے باوجود، سب کچھ نظر آنے کے باوجود بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے، کفر پر ڈٹے رہتا ہے، شرک پر ڈٹے رہتا ہے، تو اٹ از ہز فیورن، اٹ از ہز ہیڈک، جائے وبال اسی کے اوپر. اب اللہ پر نہیں آئے گا. اللہ نے حجت تمام کر دی، یہ یوم فرقان بتا دیا، سارے بیانات بتا دیا. آپ تم نہ جانتے ہو، نہ مانتے ہو، وہ تمہاری یہ وہ وبال پورا تمہارے اوپر. اب اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لیہلکا ہلاک ہو جائے، من جو ہلاک ہونے والا ہے، جو نہیں ماننے والا، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہلاک ہو جائے. ہم بینا دلیل، بیان بولے تو دلیل دے، ہم سے بیان دلیل دیکھ کر ہلاک ہونا، یعنی اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی. اب روز محشر انہیں پوچھ نہیں سکتا، اللہ کے پاس سے حجت ختم ہو گئی. بتا دیا اللہ نے، سب کچھ بتا دیا. اب اس کے باوجود تم انا پرستی کی وجہ سے، اپنی سرداری چودراہٹ کی وجہ سے، یا اپنے ایگوئزم کو سنبھالتے ہوئے، اس کا بھرم رکھتے ہوئے نہیں آتے، تو اٹ از یور ہیڈ. اب اللہ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. جو ہلاک ہو جائے ہو جائے، دیکھنے کے بعد ہو جائے. دیکھنے کے بغیر ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر اللہ نے بتایا نہیں، اللہ مجھے نہیں معلوم تھا نا.
मुझे बता देता ये नबी बरहक है, ये किताब बरहक है, तेरा दीन बरहक है, तो मैं ही सबसे बड़ा मोमिन हो जाता। अबू जहल भी कह देता सबसे बड़ा मोमिन मैं ही होता, सबसे पहले मानने वाला मैं ही होता। ये हुज्जत बाकी ना रहे, अल्लाह ने ये सारे बय्यनात बताकर अब कह रहा है कि जो हलाक हो, ये बय्यन देखने के बाद हलाक हो जाए तो वो उसके ऊपर दलील कायम हो गई। वो यहया, और जो भी जिंदा रहता है, मन है ये जो जिंदा रहना है, अम बैना, ये दलील देखने के बाद जिंदा रहे। अब ये दलील के बगैर अंधाधुंध तकलीफ ना करे, बयन देख ले अल्लाह का दीन बरहक है, ये हुजूर की रिसालत, हुजूर की हक्कानियत, ये सारा सब पर खुल जाए। अब इसके बाद जो कायम होता है दीन पर, उसका दीन बहुत अच्छा होता है, बहुत मुस्तहकम होता है। अब देखिए हम मुसलमान हैं, बराए नाम मुसलमान, पैदा हो गए मुसलमानों के घरानों में, मुसलमान हैं। अब हमारी नजर में ही, हमारे मुशाहिदे में ही कई जो रिवर्ट्स हैं वो कैसे हैं, कई रिवर्ट्स, हालांकि उनको उर्दू का कोई मालूम नहीं, इंग्लिश वाले वो लोग, या कन्नड़ा वाले, या तमिल वाले भी हैं, तमिल वाले भी हैं मेरे मुशाहिदे में है, क्लोज मुशाहिदे में है। अब वहां पढ़ाती भाई उन्होंने इल्म ना हो, इल्म सर्फ उसको कहते हैं जो अल्फाज बनाते हैं, इल्म ना हो उसको कहते हैं जो जुमले बनाती हैं, पैराग्राफ बनाती हैं, यानी एडवांस ग्रामर पढ़ाती, जिनको उर्दू का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, जिनको अरबी का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। शादी करे उन्होंने, शादी के वास्ते करे, शादी के वास्ते इस्लाम कबूल करे, वो जो इस्लाम का चस्का उनको लग गया, जो उन्होंने कुरान इतनी गहराई में पढ़ा, तो ये हाल है आपके अबवाब पढ़ाती। अबवाब मुझे भी मुश्किल है। कल एक गलती हो गई, मैं तस्वीर करूंगी उसकी, वो गलती इससे नहीं हुई, वो ऐसा रवानी में बोलने में हो गया है। वो किस में हुआ मैं बता दूं, क्या बात आई थी, बाबे इस्तेफाल आया था, बाबे इस्तेफाल, इस्तगफार की बात आई थी, इस्तगफार, आप अस्तगफार बोले ना, तो मैंने आपको करेक्ट किया, नहीं इस्तगफार बोला ना मैंने, तो इस्तगफार ऐसा आता है, बाबे इस्तेफाल बोला मैंने। बाबे इस्तेफाल में ऐसा आता है कि इस्तफआल, उसका ये शुरू ऐसा होता है, इस्तफअला, यस्तफइलु, इस्तफआलन। अब इसमें आप इसको ढालिए, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफारन। अब मैं शायद मुझे शाइबा है कि इस्तगफार के बजाय मैं भी इस्तगफार कह दी हूँ या क्या, मैं ये तो नहीं देखी रिकॉर्डिंग, लेकिन मुझे कुछ डाउट आया तो वो सही कर देना चाहती थी। तो ये क्या है, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफारन, बाबे इस्तगफार से। अब ऐसा ही एक और ले लीजिए वर्ड, इस्तकबरा, यस्तकबिरु, इस्तकबार, तकब्बुर को जो कहते हैं ना, वो भी बाबे इस्तगफार में आता है। बाबे इस्तगफार में आने वाले सभी ये शिद्दत के होते हैं। इस्तगफार बोले तो दिल की गहराइयों से जो हम अल्लाह की तरफ रुजू होती हैं, तौबा करती हैं, उसकी बात है। हाँ अच्छा, तो वो एक तस्हीह करना था, वो हो गया। जी हुई। और जिंदा रहे मन हैया, जो जिंदा रहना है वो बैना, देखकर, दलील देखकर जिंदा रहे। ऐसा ही अंधी तकलीद नहीं, ये दीन ऐसा नहीं है, ये बड़ा फितरी दीन है और बड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। आप देखिए, आप गौर करें तो ये वर्डिंग्स या वो आप भी ले लीजिए, ऐसा कैलकुलेटेड वर्ड्स हैं। 4 अल्फाज इसके आती, फाइल के आती, 3 किसके आती, फेल के 3, फाइल के 4, मफूल के 5, मफूल 5, ऐसा ही आती। ये बाबे सलासी, सलासी में जो आता है, सलासी मुजरद में ये ऐसा ही आता है। रुबाई में आता तो 4 आती। वो आपको जो ये कुछ कर रही है हमारे दरमियान भी, मेरे ग्रुप में भी, मुझे बहुत खुशी है, थोड़े नोट कर रही भी और थोड़े ग्रामर भी सीख रही। अल्लाह उनको समझ भी अता फरमाए, जल्दी जल्दी सीखना, और उसमें शौक अता फरमाए। शौक आ गया तो आप कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। अब जैसे मैं बोली ये टेमिलियन की बात, हाँ, अब वो पढ़ा रही उन्होंने, एडवांस ग्रामर पढ़ा रही उन्होंने, और लैंग्वेज इतना समझ गई, हम लोग नहीं समझे उतना, उतनी गहराई में हम गए ही नहीं। क्यों, हमें विरासत में मिल गया दीन, दीन के बारे में खोज हमने नहीं की ना, कोई खोज नहीं की, कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी हमें। हाँ, कलमा पढ़ लिया, आजान कान में बोल दिए, जब पैदा हुए आजान कान में बोल दिए, हाँ, और कहीं पापड़ बेलने नहीं पड़े हमें। तो ये दीन की बात ऐसी है कि जो
देखता है, दीन में ज्यादा गहराई में जाता है, जो बैनात पर गौर करता है, वो जिंदा रहे, डटा रहे, जमा रहे दीन पर बैनात देखकर। और जो बैनात देख कर भी बावजूद उसके नहीं आता दीन पर, हलाक हो जाए, उसको अल्लाह से, अल्लाह का कोई उससे हर्ष नहीं है, हलाक हो जाए। अल्लाह कह रहा है बैना बन दलील है, वो इन अल्लाह लसमीउन अलीम, यकीनन अल्लाह सुनने वाला है, इल्म रखने वाला है। अब एक बाव मुहावरा तर्जुमा देख लिए तो आपको गौर से समझ में आ जाता है। अल्लाह यहाँ याद दिला रहा है वो वक्त जब तुम लोग वादी के करीब, मदीने के करीब के वादी के हिस्से में इस्लामी लश्कर, और थोड़ा दूर के हिस्से में यानी मक्के को जो करीब था वो किनारे पर कौन सा लश्कर, कुरैश का लश्कर। और तीसरा लश्कर की एक बात आ रही है, काफिले की बात है, जहां अमीर काफिला अबू सुफियान ने वो लेकर निकल गए कोस्टल एरिया से, असफल एरिया, निचला एरिया, निचले का एरिया, निचला हिस्सा, वहां के कोस्टल, अलोंग द कोस्टल पाथ उन्होंने निकल कर चले गए, लेकर चले गए। अब तुम्हारे दरमियान अगर तुम, अल्लाह कह रहा है उसके बाद का एक मौजू जंग के मुताल्लिक आ रहा है कि अगर तुम जंग लड़ना चाहते, टाइम फिक्स करते, डे फिक्स करते, डेट फिक्स करते, टाइम फिक्स करते, तो इधर उधर हो जाता था, इख्तिलाफ हो जाता था। ये टाइम पर तुम पहुंच नहीं सकते थे, ये डे तुम मेंटेन नहीं कर सकते थे, उसको अडियर नहीं कर सकते थे, ये हो सकता था, जरूर इख्तिलाफ हो जाता। लेकिन वाकया ये है कि तय किए बगैर जो लश्कर टकरा गया, तय किए क्या ही ना, है नहीं नहीं कर, कोई तय नहीं नहीं कर हुआ ये दिन नहीं। जंग होगी, इतने आदमी होंगे, ये सामान ले जाएंगे, ऐसा ले जाएंगे, ये लश्कर होगा, लश्कर का नक्शा ऐसा होगा, हुलिया ऐसा, नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले उनको रोकने के लिए, वहां से लश्कर आ गया। अब कन्फ्रंट होना ही था, मरो या मारो वाला मामला था। अब पीछे हटने वाला नहीं, रेट्रीट नहीं है, आर्डरली रेट्रीट एक ही है, दूसरी रेट्रीट नहीं है। तो अब तय हो गया था, टकरा गया, अल्लाह ने टकरा दिया। इसलिए हुआ, अल्लाह कह रहा है किस लिए हुआ, किस लिए टकरा ये, इसलिए कि काम होकर रहना था, काना अमरन काना मफूला, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के मंसूबे में है, अल्लाह के प्लान में है कि ये होना ही है। अब आगे 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 बढ़ना है, ठंडे ठंडे तरीके से सिर्फ ये बातें बोलो, तालीमात दो, कोई आए या कोई ना आए छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इस्लाम नहीं फैलेगा। क्या बोलता था जर्मनी का स्टालिन, लेनिन स्टालिन, कहाँ का था वो, ब्लड, ब्लड एंड आयन, पॉलिसी क्या थी, ब्लड एंड आयन। अगर कोई रेवोल्यूशन होना है तो चुपके बैठे बैठे होता है क्या, नहीं होता, खोरेजी होनी ही है, तलवार चलनी ही है। तो अब अल्लाह ये इसमें ला लिया है मुसलमानों को कि अब आगे बढ़ना है, अब ठंडे ठंडे बैठ कर काम नहीं चलेगा तुम्हारे से, इस्लाम का बोलबाला नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए हुआ कि काम होकर रहना था, अल्लाह उसे पूरा करके दिखाना था, ताकि जिसे बर्बाद होना हो वो वाज़े दलील देख कर बर्बाद हो जाए। नहीं लाता ईमान ना लाए, उसे अल्लाह को कोई गरज नहीं है, लेकिन देखना, उन्हें दलील देख लेना, दलील देख कर हो जाए वो। और जिसे जिंदा रहना हो वाज़े दलील देख कर जिंदा रहे। ये बात है। और अल्लाह हर बात सुनने वाला, हर चीज पर कादिर है। ये मैदान जंग का नक्शा, ये वादी कैसी थी, और मदीने मुनव्वरा के करीब तर का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मुसलमानों का लश्कर वहां था। और जो किनारा मदीने मुनव्वरा से निस्बती तौर पर दूर था, वहां कुफार का लश्कर था। और काफिले से मुराद कौन सा, अबू सुफियान का काफिला, जो इस वादी के नीचे की जानिब से साहिल समंदर की तरफ से बचकर निकल गया था। और इसके मुताल्लिक भी मफूला, मफूला क्या है, मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने असबाब ऐसे पैदा फरमा दिए कि कुफार मक्का से बाकायदा जंग ठन गई, छिड़ गई। अब कुछ भी नहीं है, राह फराम नहीं है। वरना अगर दोनों फरीक पहले से जंग के लिए कोई वक्त मुकर्रर करते, दिन मुकर्रर करते, डेट मुकर्रर करते, तो इख्तिलाफ हो जाता। अल्लाह कह रहा है इख्तिलाफ तुम्हारे में जरूर आ जाता। मुसलमान चूंकि बेसरो सामान थे, इसलिए बाकायदा जंग से कतराते। भाई हमारे पास है नहीं कुछ भी, हम आए नहीं हैं जंग के लिए, हम आए हैं उन्हें रोकने के लिए, कैसे जंग करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शायद ऐसी बातें कर बैठते, कतराते जंग से, टलाना चाहते जंग। लेकिन जब उन्हें अपना तिजारत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ नहीं इससे पहले की बात, हाँ मुसलमान चूंकि बेसर वो सामान थे तो उन्होंने कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नहीं हो सकता, हम आए ही नहीं जंग के लिए, तो ये टाल मटोल हो जाती थी। और मुशरिकीन के दिलों में भी चूंकि हजरत की एक हैबत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो भी ख्वाहिश के बावजूद जंग को टालाना चाहते। लेकिन जब उन्हें अपना तिजारती काफिला खतरे में नजर आया तो उनके पास जंग के सिवा कोई चारा ही न था, निकल पड़े थे वहां पर, अब वापस जाना उनका वो नहीं रहा। तो मुसलमानों के सामने जब लश्कर आ ही गया तो वो भी लड़ने पर आमादा हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये असबाब हमने इसलिए पैदा किए कि ये एक मर्तबा फैसला कुन जंग हो ही जाए, एक मर्तबा हो ही जाए, अब ठंडा ठंडा काम से नहीं चलेगा, अब एक मर्तबा जंग हो ही जाए और अल्लाह ताला की अता से फतह और नुसरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत उससे जाहिर हो जाए। अब जंग में कामयाबी हो गई तो लोगों को मालूम हो जाता है अतराफ के कबाइल भी हैं, उलमाए यहूद भी हैं यहाँ पर, यहाँ मुनाफिकीन भी बहुत ज्यादा हैं, तो उनको मालूम हो जाता है कि अल्लाह मोमिनीन के साथ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, ये दिन सही है बरहक है, ये सब हक़ानियत खुलकर सामने आ जाए, ये मकसद है अल्लाह का। उसके बाद भी अगर कोई शख्स कुफर करके बर्बादी का रास्ता इख्तियार करे तो करे, अल्लाह की बला से, अल्लाह को उसकी फिक्र नहीं है, उन्हें आने का, उसके आने की जरूरत भी नहीं है। जबरदस्ती किसी को नहीं कराता था ना, अल्लाह वल्लाहु क्या है वो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम को हिदायत नहीं देता, जो दिल से नहीं चाहता उसको जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींच कर लाने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया। आप अपनी तालीम दीजिए, कह दीजिए उनके सामने हक़ानियत जाहिर कीजिए, अल्लाह की हक़ानियत, आपकी रिसालत की, तौहीद की बात ये कीजिए, लेकिन आपके ऊपर जबरदस्ती कोई वाजिब नहीं है, जितना बोलना है उतना ही। अब उनके अंदर है शर व खैर की वो जो उनसर दिया गया है, अब उसको बरोए कर लाकर अब ये सारी आयत इलाही, कौनैनी आयत, ये आयत कुरान की आयत, इसकी रोशनी में उन्हें आना है, आपको ये जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला की तरफ से दलील के वाजे होने के बाद अगर कोई बुराई अख्तियार करता है, कुफ्र पर डटा रहता तो रहे, और कोई अच्छी रास्ते पर आ जाता है, दलील देखकर आ जाता है, तो उसकी फलाह व बहबूदी है, वाज़ेह दलील, अब उसमें क्या है, बाइज्जत जिंदगी अख्तियार करने वाला हो जाता है वो, और वाज़ेह दलील की रोशनी में वो बहुत ज्यादा हक़ानियत हासिल करके अब उसे एक बय्यना मिल जाता है। आया नंबर नेक्स्ट 43, जंग का मामला, जंग का नक्शा फिर एक बार अल्लाह ने इस आयत में बता दिया है, कैसा था, किस लश्कर का कहाँ टिकाव था, और एक लश्कर जा रहा था, अब काफिरों की क्या हालत थी, उनकी दिली कैफियत क्या थी, मुसलमानों का क्या था, नहीं लड़ने वाले थे लेकिन लड़ना जरूरी हो गया, इनएविटेबल हो गया, तो कैसी नुसरत अल्लाह ने अता कर दी। तो किसी भी सिचुएशन में अल्लाह पर भरोसा कर कर आगे बढ़ जाना, पीछे नहीं हटना, अल्लाह की मदद इंशाल्लाह शामिल हाल हो जाती है। मुसलमानों का भी यही हाल है, आगे की सारी आयत ऐसे हैं जो ऐसे लगता है कि हमारे आज के उम्मत मुस्लिमा को आईना दिखा रहा है अल्लाह। युरीकुहुमुल्लाहु फी मनामिका खलीला, इस जब दिखाया, यूरी का दिखाया आपको अल्लाह ने, फी मनामिका, मनामिका नींद में, आपकी नींद में दिखाया, खलीला किसको दिखाया, लश्कर कुफार को कम दिखाया, ताकि आपको कोई कम हिम्मती, पसपाई, हौसला शिकनी ना हो जाए। अब क्या छोटा दिखाया तो अच्छा चलो हमारे साथ बेसरो सामानी है, कुछ भी नहीं है, तादाद भी कम है, चलो कम है नहीं, नो भी तो कम है ना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं है, हम जंग कर सकते हैं। तो ये हिम्मत दिलाने के वास्ते अल्लाह कम दिखाया, नींद में कम दिखाया, यानी ये एक रात दरमियानी रात है, जब सुबह जंग होने वाली है उससे पहले की रात में अल्लाह को नींद में दिखाया, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद में दिखाया। वलो अराकहुम कसीरन, और अगर आपको उनकी कसीर तादाद दिखा देता, 1000 की तादाद अगर दिखा देता, लफशिल तुम लतनाजातुम, तो फशिल तुम में आप पे क्या होता, खलफशार पैदा हो जाता। खलफशार किसे बोलते हैं, बुज़दिली, का शिकार हो जाना, बुज़दिली का शिकार,
एक कंफ्यूजन का शिकार करना कि नहीं करना, जंग करना कि नहीं करना। ये इतने आदमी है ना, और इतने इनके पास ये है, असला हथियार है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा खलफशार का शिकार, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते, बस हिम्मती का शिकार हो जाते, तो तुम बुजदिली करते, बुजदिली दिखाते। लफशिल तुम लतनाजा तुम, तनाजा, तनाजा क्या बोलते हैं? झगड़ना, कंट्रोवर्सी। लड़ना झगड़ना। झगड़ना। हाँ, लड़ना झगड़ना भी। अब कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है क्या? कोई करने तैयार होते, हाँ चलो चलेंगे, जंग करेंगे, और कोई नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं आने वाले, ये तनाजा में पड़ जाते, कंफ्यूजन। लफसल तो, हाँ कंफ्यूजन में। तो तुम झगड़े में पड़ जाते, कंफ्यूजन में पड़ जाते। झगड़े को भी बोलते, झगड़े को भी तनाजा बोलते हैं, डिस्प्यूट, कंफ्यूजन को भी, हाँ कंट्रोवर्सी को भी, आर्ग्यूमेंट्स को भी तनाजा। डिस्प्यूट। हाँ नहीं, डिस्प्यूट नहीं, डिस्प्यूट कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, डिस्प्यूट झगड़ा, डिस्प्यूट सभी आ झगड़ा। जाता है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। हाँ कंटेक्स्ट पर आपको जैसा हाँ यूज होना है वैसा यूज कर लेना। अब यहाँ आप झगड़ा भी कर सकती हैं, बोल सकती हैं, या कंफ्यूजन भी बोल सकती हैं, हाँ, या दोनों में खलफशार बोले तो एक तरह का बुजदिली, नहीं भाई नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं हो सकता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कंफ्यूज कर देंगे, नहीं हो सकता, हमारे पास तलवारें नहीं है, हम जंग के इरादे से आए ही नहीं। अब ये सब बातें कर कर बुजदिली का मुजाहिरा कर देते, ये भी हो सकता है। फशल तुम और लतनाजा तुम, झगड़े में पड़ जाते, कंफ्यूजन में पड़ जाते, फिल अमरी, इस बात में, जंग के बात में। अमर कौन सी बात है? जंग। वलाकिन अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह क्या करया? वलाकिन बचा अल्लाह, लिया, अल्लाह बचा लिया, सल्लमा सलामती बचा के बचा साथ, लेना। सलामती सलामत के साथ पूरे बचा चीजों लिया। करा दिया, जंग में खड़ा भी दिया, जंग में कामयाबी भी दे दिया, फरिश्तों से मदद भी कर दिया, सब कुछ हो गया हाँ अल्लाह की मदद से। अल्लाह उनको बचा लिया, यौम फुरखान कर दिया, डंका बजा दिया, इस्लाम को गलबा अता कर दिया, मुसलमानों को कामयाबी दे दिया, सुरखी दे दिया, एक गलबा दे दिया। अब वो पीछे पलटने की जरूरत नहीं है। एक क्या हो गया, एक एनकरेजिंग स्टेप इनको मिल गया, अब आगे ही आगे बढ़ने का हौसला दे दिया। वही चाहता था अल्लाह। आप खामोश नहीं बैठना है, आप तलवार जो निकल गई है तुम्हारे म्यान से, अब फिर वापस नहीं जाना है, अब आगे जंगों का सिलसिला जारी रखना है जब तक के इस्लाम कायम। इससे पिछली आयत में हम पढ़ चुके हैं ना, कुल्लुहु दीना, सारे का सारा इस्लाम ही हो जाए, दीन कायम हो जाए, तब तक तुम्हारी तलवार म्यान में नहीं जाएगी, तब तक तुम्हें जद्दोजहद करना ही है। इल्ला लियाबुदून वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियाबुदून, उसकी इबादत के लिए, उसकी इबादत करना तो उसके दिन को कायम करना। अल्लाह कह रहा है तुम्हें पैदा ही किया इसलिए कि तुम इबादत करो। अब इबादत के वास्ते दीन कायम करना, दीन की सुरखरोई के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना है। तो ये बात, इन्नहु बेशक अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अलीम है, जानने वाला है, बिजात, बिजात बोले तो दिलों का हाल, बिजाति सुदूर, सुदूर किसकी जमा? सदर की जमा, सदर बोले तो सीना। शख सदर, शख खमर, ये सब आया नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चाक हुआ सीना, उसको क्या बोलते हैं? शख सदर। हमारा शख खमर, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली दिखाए, हाँ वो मालूम हुआ क्या, कब हुआ बोल को? मदीने के दौरान या मक्की दौर के दौरान? वो कुछ बन ये चली। मक्कीच मैसुनी शमसी हकीकत तो बोली ना, वो अनस रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है जी कि वो मक्के दौर में हुआ बोल को है, बुखारी की हदीस का तो। चांद शक हुआ। हाँ शकुल खमर। अगर याद हाँ आई नहीं तो मुझे हाँ भेजो, मैं ये ग्रुप में ओके। डालती हूँ। हाँ ये सब हाँ चीजें हाँ ये रिसर्च के इंशाल्लाह। टॉपिक है हमारे लिए, सब कुछ तो हम जान नहीं सकते। जब ऐसा मामला हाँ आ हाँ जाता है तो क्या ये कोई इल्म हासिल कर लेना अच्छी बात हमारे वास्ते, आंखें खुल आहो जाती हैं, थोड़ा जरा गहराई में चली जाती है इंशाल्लाह। हाँ तो यहाँ अल्लाह नहीं कह रहा है हम कि जी नहीं वो यहाँ है मेरे पास लिखा हुआ है कि वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, मक्के में कुरैश और पेगन्स को जब उन्होंने रिक्वेस्ट करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टू शो देम अ मिरेकल, वो फिर ही शोड देम द स्प्लिटिंग ऑफ द मून। सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 831। वॉल्यूम 4 831 हदीस 831। हाँ इंशाल्लाह। हाँ
तो गूगल सर्च हाँ, करे तो मिल जाता है, मिल देख जाता है, हाँ लीजिए हाँ इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह खैरन अच्छा, कसीर, हाँ माशा। हाँ, वो यही है का। तो ये अल्लाह कह रहा है कि अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिलों में क्या चल रहा है उससे वो बाखबर है। अब मेरी नीयत क्या है, मेरे दिल में क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलता था कि ये लोग क्या चाहती हैं, जंग करना चाहती हैं या पीछे हटना चाहती हैं, या ये लोग एंड टाइम पर दगा दे जाएंगे, पीठ फिर जाएंगे, कमजोर होकर बैठ जाएंगे, इतना जमेगा फिर 1000 का देखकर, ये नहीं मालूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को मालूम है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह देख रहा है, सबके दिलों के हाल से वाकिफ है, तो अल्लाह को मालूम है क्या होने वाला है। तो क्या हुआ, पहले ही दिखा दिया कि कुछ ज्यादा नहीं है भाई, आराम से तुम जंग कर सकते हैं, कम दिखा दिया। और उनको भी वैसा ही दिखाया, अब उन्होंने भी पीठ फिर जाते, उनको भी कम दिखाया, मुसलमानों की तादाद कम ही दिखाया, जो थी उससे भी कम दिखाया। अच्छा चलो कर सकते हैं मुल्को। अल्लाह ये क्या दिखाना चाहता था, यौम फुरकान बनाना चाहता था, इस वास्ते ये अल्लाह ये सब भी असबाब पैदा कर दिया। अल्लाह बड़ा मुसब्बब है, असबाब पैदा करने वाला है, उसको असबाब की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स की, इसकी अल्लाह को जरूरत नहीं, अल्लाह खुद बनाने वाला है, सबब बनाने वाला है। अल्लाह कह रहा है अब आगे नेक्स्ट आयत में 44 आया नंबर, वो युरीकुहुम इज़िल तखैतुम फी अयूनिकुम खलीलन, ताकि अल्लाह कोई फैसला कर चुका है, वो हुक्म पूरा हो जाए, वो फैसला होकर रहे। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो वक्त याद करो, इस जब भी आता है, इस आया तो क्या किसी वक्त की तरफ इशारा होता है, और हम इस तरह पढ़ेंगे कि वो वक्त याद करो, या वो वाकया किसी वाकये की तरफ या वक्त की तरफ। अब यहाँ वक्त है, वो वक्त याद करो कि जब तुम ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए थे, कन्फ्रंट हो गए थे तुम लोग, अल्लाह कन्फ्रंट कर दिया था तुम्हें, तो अल्लाह तुम्हारी निगाहों में उनकी तादाद कम दिखा रहा था, और उनकी निगाहों में तुम्हारी तादाद कम करके दिखा रहा था, ताकि जंग हो कर रहे, फैसला हो कर रहे। तो ये अल्लाह का मकसद था, ताकि जो काम होकर रहना था अल्लाह उसे पूरा कर दिखाए, और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। ये बात है। उस ख्वाब के अलावा भी बेदारी का वाकया, अब ख्वाब में तो अल्लाह दिखाया, ख्वाब में दिखाया ना कि कम है, उन्होंने कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया, ताकि तुम्हें कोई कमजोरी का शिकार ना होने पाए, पस्ती का शिकार ना होने पाए। अब ये ख्वाब की बात नहीं है, अब ये हकीकत की बात है। हकीकत में अब जंग मैदान में खड़ कर लश्कर, मुसलमान इस्लामी लश्कर देख रहे हैं कि उनका कम नजर आ रहा है, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, उनका कम नजर आ रहा है, इनको हजारों की तादाद है, हजार की तादाद, हजार नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रहा। ये इस ख्वाब के अलावा बेदारी का वाकया है ये, जो आयन उस वक्त पेश आया जब दोनों लश्कर आमने सामने ठन गए, आमने सामने टकरा गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कुछ ऐसी कैफियत तारी कर दी कि कुफार का वो लश्कर जरार जो हजार पर मुश्तमिल था, कील कांटे से लेस था, ऐसा नहीं नजर आया उनको, बहुत मामूली महसूस हुआ, कोई ज्यादा आदमियां नहीं, कोई ज्यादा असला भी नहीं इनके साथ जंग कर सकती, ऐसी कैफियत दिखाया अल्लाह ऐन जंग के मौके पर। वरना इनमें क्या होता, कदम डगमगा जाते, तजल्जुल हो जाता, डर जाते। लड़खड़ा जाते, डर जाते, जंग नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह की ये मसलियत हुई, अल्लाह की ये मेहरबानी, इनाम, नेमतें हो गई, अल्लाह का फजल हो गया कि उनको कम दिखाया और इनकी हिम्मत बढ़ गई, करने के वास्ते जंग, आगे बढ़ने के वास्ते इनकी हिम्मत आ गई इनको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आया नंबर 45, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुम फिअतन फस्बुतू, साबित कदम रहना, जब आ गए जंग में, डट गए, जम गए, अब हटना नहीं है। फस्बितू, साबित कदम रहो, वस्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह को याद करो, तुम्हारी जमीयत पर तुम
एक दफा नको करो, ज्यादा है या कम है, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि अल्लाह तुम्हें फलाह दे। क्या कह रहा है अल्लाह? ऐ ईमान वालो, ऐ आमीन। मोमिनो, जब तुम्हारा किसी गुरोह से मुकाबिला हो जाए, कन्फ्रंट हो जाए तुम, तो क्या करो? साबित कदम रहो। अब आ गए तुम, क्या है ये वइज़ा तवक्कल, तवक्कलतु वइज़ा अलल्लाह। अज़मता, वइज़ा अज़मता तवक्कलता अलल्लाह। जब तुम आमीन। किसी चीज का अज़म कर चुको, अज़म बोले तो इरादा, इरादा, पक्का इरादा। इरादा। हाँ, जब तुम राइट। एम कर चुको, जब तुम इरादा कर चुको, पक्का इरादा, तो क्या करो? अब आगे पीछे नहीं देखना, इफ बट्स में नहीं जाना, क्या करना? तवक्कल तो अल्लाह, तवक्कल तो अल्लाह पर तवक्कल कर को आगे बढ़ जाना। किसी की अब ये कंफ्यूजन होता है कई मामलात में, हमारे रोजमर्रा के मामलात में, ये करें कि वो करें, ये करे तो कैसा, वो करे तो कैसा। अब जब दिल को लगे कि ये करना है, अब इंशाअल्लाह करना है, अल्लाह पर एतबार रख कर, भरोसा रख कर बढ़े, तो जब तुम इरादा कर लो तो बस आगे चलो, और इसमें आगे पीछे नहीं देखना। कामयाबी है। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी ग्रोह से टकरा जाओ तो पीछे हटना नहीं है, साबित कदम रहना है, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करो ताकि तुम्हें कामयाबी हो। नेक्स्ट आया नंबर 46। 46, वातिउल्लाह व रसूलु, नसीहतें दी जा रही हैं। अब एक काम तो ये करो कि डटे रहो, जमे रहो, साबित कदम रहो, मुतज़लज़ल ना हो, तुम्हारे कदम डगमगा ना जाए, अल्लाह का कसरत से उसका जिक्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अब दूसरी नसीहत, वातिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहू, हो ज़मीर ज़मीर शान, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। अमीर हैं उन्होंने, सिपह सालार हैं, अब उनकी बात मानना। जंगे ओहद में हुआ, नाफरमानी करने की वजह से खूब खसारा हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ, फव्वारा ऐसा छूटा खून का कि बेहोश हो गए, और एक ये खड़ा हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक लोगों में हलचल मच गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब क्या है जंग, सब हथियार फेंक कर बैठ गए, हजरत उमर खत्ताब बैठ गए, हथियार फेंक कर बैठ गए, अब क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हो गया, अब हमारा क्या है? तो ऐसा नहीं होना। क्या करना तुम? रसूल की बात मानना, रसूल जो हिदायत दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हमारे चीतरे उड़ जाए, तुम देखो कि वल्चर्स हमारा गोश्त नोच नोच कर खा रहे, फिर भी तुम इस दर्रे से नहीं हटना है। एक पैसेज पर खड़ाया हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितने 35 या 50 की बात आ रही है, नेजा बरदार, नेजा मारने वालों को, क्योंकि सारा कुछ कवर हो गया था, वो एक पैसेज छुटा हुआ था, और वहां से अंदेशा था कि पलट कर ये लोग, दुश्मन की फौज ना आ जाए। हुआ भी, यहाँ से दर्रे से जो उठे, ये तो ये पसपाई हुई उनकी, कुफार भाग खड़े हुए, भागने लगे। अब भागते भागते ये कहा जाता है, वो रिवायतों में आता है कि उन्होंने जंगी स्ट्रेटेजी करे थे। कौन? खालिद बिन वलीद, एक दस्ता खालिद बिन वलीद का, उन्होंने बड़े वॉरियर, जंगजू, बड़े स्ट्रेटेजिक पर्सन, बहुत उखाबी नजर उनकी, उखाबी फैल्कैनिक, बहुत दूरंदेशी से देखने वाले, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज अपनाने वाले जंग में। उन्होंने खुद कहा करते थे कि 100 से ज्यादा जंगों में मैंने हिस्सा लिया है, मेरे जिस्म में एक इंच जगह ऐसी नहीं है जहाँ नेजा या तलवार का या इसका निशान न असला का ना लगा हो। वो किससे कहा उन्होंने? चंद लोगों से कहा, चंद नौजवानों से, जो जंग में जाने से कतरा रहे थे कि कहीं कत्ल ना हो जाए, कहीं शहीद ना हो जाए। तो हजरत खालिद बिन वलीद उनको नसीहत करते हैं कि देखो, मैं बिस्तर मर्ग पर ऊंट की तरह पड़ा मर रहा हूँ, ये ना समझो कि जंग में जाने से तुम्हें शहीदी मर्तबा मिल जाएगा। 100 से ज्यादा जंगों में मैंने हिस्सा लिया है, और मेरा जिस्म देखो चल नहीं हो गया है, कहीं भी एक इंच नहीं है सलामती की, एक इंच जगह नहीं है, लेकिन मैं, क्या शहादत मिली मुझे? 100 जंगों में हिस्सा लिया, शहादत मिली। सबको नहीं मिल जाती, ये बहुत बड़ा मर्तबा है, जाओ जाओ, एनकरेज करने के लिए कहा था उन्होंने। हाँ, क्या बात आ गई? रसूल हो, और अल्लाह के रसूल की बात मानो। वो दर्रे पर से जो आदमी नीचे उतरे, वही है ना जंग का नक्शा बदलने के लिए काफी हो गया। अब उन्होंने जो भागते हुए, खालिद बिन वलीद भागते हुए पीछे पलट कर देखे, उनको यकीन था कि ये लोग ऐसा उतर जाएंगे, दर्रा खाली हो जाएगा, हमें वहां से जगह मिल जाएगी। पीछे पलट कर जो वार किया ये लोग, ये जो मोर्चा था ना, लश्कर, राइट विंग, लेफ्ट विंग, मैसरा, मैमना, ये सारे जो खल्ब होता है, बीच में खल्ब होता है, खल्ब बोले तो दिल, बीच में एक होता है, ये सारे दरहम बरहम हो गए थे। कई को
माले गनीमत लूटने के लिए इधर से उधर से सब आ गए थे। अब उनको जो दर्रा खाली होता देखा तो लोग समझे कि हम भी लूटने जाएंगे, तो सब हो गया था धर्म बरम। तो क्या हो गया, एकदम अचानक जो धावा बोला खालिद बिन वलीद ने, जंग का नक्शा ही पलट गया। सबको तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान। अच्छी, हाँ, जीती हुई बाजी हार में बदल गई थी वक्तिया तौर पर। बाद में फिर संभल गया वो। वक्त का जिक्र आएगा तो वहां हम करेंगे। लेकिन यहाँ बात क्या हुई, रसूल हो, उसके रसूल की जो हिदायत होती हैं उस पर अमल करो। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह नसीहत कर रहा है, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हबा, वो तज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी हवा उड़ जाती है। तनाजा में नहीं पढ़ना, किसमें, आर्ग्यूमेंट्स में, डिस्प्यूट्स में, झगड़े में, इसमें अगर तुम पढ़े तो क्या होता है, बुज़दिल हो जाओगे तुम। फतफशलू ला तनाज़ऊ, तुम आपस में झगड़ा ना करो, आपस में इख्तिलाफ में ना पड़ जाओ, तो क्या होगा, फतफशलू, बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी जमीयत टूट जाएगी, तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे। वो तज़हबा, और उखड़ जाएगी, री हुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी तुम्हारी कमजोरी आ जाएगी, तुम्हारे जो बुलंद हौसले होते ना वो कमजोर पड़ जाएंगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम साबित कदम नहीं रह सकोगे। वस्बिरू, और तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, सब्र करो, हर बात झेल कर सब्र करो। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह, मा साबिरीन, अल्लाह यकीनन सब्र करने वालों के साथ है। ये एक आफाकिया ट्रुथ है, हर मामले में, हर मैटर में, कहीं भी कैसा भी सिचुएशन हो, सब्र से काम लेना। सब्र नहीं करना क्या है, शैतान की यही है। अल्लाह का उसूल क्या, सब्र। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह नसीहत कर रहा है मुसलमानों को, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, आजकल के उम्मत मुस्लिमा के लिए। आपस में झगड़ा करके ये तफरीकात, ये जो हमने में फिरका वारियत है, ये सब क्या हो गई हमारे लिए। ये जो अल्लाह कह रहा है तुम कमजोर पड़ जाओगे, हम कमजोर हैं कि नहीं, कमजोर है नहीं, हम कमजोर, सबसे कमजोर कौम हमारी ये कौम है, सबसे डरते रहते हैं आए दिन की, हमें नंगी तलवार हमारे ऊपर लटकती रहती है, ये तरमीम हो जाएगी, वो कोई आर्टिकल चेंज कर देगा, वो कुछ कर देगा। क्यों, हमारे आपस में तनाजा है, इसलिए हम कमजोर हैं। अल्लाह कह रहा है तुम अगर झगड़ा करोगे, आपसी झगड़ा, तो तुम्हारा इत्तेफाक निफाक में बदल जाता है, फिर तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, जरूर उखड़ी हुई है। हमारा ही आईना अल्लाह दिखा रहा है आज की उम्मत मुस्लिमा का। और सब्र से काम लो, अल्लाह कह रहा है सब्र से काम लो, यकीन रखो तुम कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आया नंबर 46 हुआ, टाइम क्या हुआ, अभी है टाइम। आया नंबर 47, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरौ व रियाअन नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत। किसके मुताल्लिक है, उन लोगों की तरफ ना हो जाओ, कुफार मक्का, लश्कर कुफा, जो दन दनाते हुए दबदबा शान शौकत दिखाने के लिए बड़े कर्रो फर के साथ बड़ा लश्कर जर्रार लेकर निकला था। नसीहत कर रहा है अल्लाह कि तुम उनकी तरह ना हो जाओ। उन्होंने दिखाने के वास्ते आया था, उनके पास दिखावा, गुरूर, तकब्बुर, ये सब था, इसका शिकार तुम नहीं हो जाना। ये अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से आकड़ते हुए और लोगों को अपनी शान व शौकत, दबदबा, ये तकब्बुर दिखाते हुए निकले थे। कौन, अबू जहल का लश्कर बीच में मिल गया, एक पैगाम मिल गया कि हम सेफली निकल चुके हैं साहिर के रास्ते से, अब तो आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आया, वो बजित था, हमारे पास तो ढोल ढमके हैं, हमारे पास नाचने गाने वाली हैं, हमारे पास शराब है, जब तक ये सारा खत्म नहीं हो जाता, ये सारा सब कुछ हम करने लेते, हम वापस नहीं जाएंगे। ये इसकी अक्कड़ थी, तकब्बुर था, जो उसे ले डूबा, लाकर वहां मारा। मक्के में नहीं मिलना था उनको, एक खिस्त अजाब की मिलना था, कहाँ मिला, मक्के से निकल कर लाया अल्लाह, जंग बदर में लाया। और लोग अपनी शान दिखाते हुए निकले थे और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे थे। क्या काम था इनका, मक्की दौर में क्या करते थे इन्हों,
कुफार कुरैश ये लोग क्या करते थे? सोच रोकने के वाले भी रोकने के लिए भी पैसे खर्च करते थे, और पैसे खर्च करते थे, जो भी हाँ हाँ, और मजलूम जो भी थे उनको मारते थे, पीटते थे, बिल्कुल। अपना तकलीफ तन देते मन थे। धन सारी कुव्वतें किस पर खर्च करते थे? ओ, लोगों को इस्लाम से रोकने हुजूर के लिए, रोकने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए। तो सबक ये देना है कि जंगी ताकत कितनी भी हो, इस पर भरोसा करके तकब्बुर में मुब्तला नहीं होना, और अल्लाह के रास्ते से किसी को रोकना नहीं। ये किसको दिया जा रहा है? मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा नहीं करना जैसा वो कुरैश के का लश्कर निकला था, बड़े करोफर के साथ निकला था, दबदबा शान दिखाते हुए। ऐसा कभी नहीं निकला था। लोग कबायली लोग बड़ा मबहूत होकर देख रहे थे कि ये क्या है, ये इतना बड़ा लश्कर कहाँ जा रहा है, इतने ज्यादा है क्या, ये शान है क्या लश्कर की? तो ये लोगों में कर्रोफर जमाने के लिए भी, ये जो दबदबा रखने के लिए भी ये जो कर रहे थे, ऐसा तुम ना करना। और अल्लाह ने लोगों के सारे अमाल को अपने इल्म के अहाते में लिया हुआ है। कहाँ कह रहा है अल्लाह? दिखावा ना करना, वो यसुद्दुना, वो रोकते थे अन सबीलिल्लाहि, वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत। और अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल को कवर कर रहा है। मुहीत उर्दू में क्या वर्ड है ये उर्दू का एहतियात, जमा लीजिए। एहतियात, यहाता, एहाता, अहाता, यहाँ यहाता बोले एहाता, तो कवर, टू कवर, कवर, यहाता करना, टू कवर, मुहीत कवर कर लेना। तो अल्लाह के मुहीत में है, यानी उसके कवरेज में, उन्हें देख रहा है। अल्लाह के स्कैनर में है, यू कैन से अल्लाह के स्कैनर में है। दायरा भी तो हो सकता है हमने, दायरा भी हो सकता है, मुहीत दायरा भी, उसके दायरे इल्म में है, उसके दायरे इल्म में है, उसे मालूम है, उसे सब कुछ मालूम है। इजी है, वर्डिंग्स तो बहुत इजी है, और उर्दू के ही वर्ड्स हैं। थोड़ा इधर उधर का ये करे तो आया नंबर 48, ओ यज़य्यना लहुम शैतानु अमालहुम व क़ाला ला गालिबा लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जहरुल लकुम। कौन कह रहा है ये? शैतान कह रहा है। इसके मुताल्लिक एक वाक़या आता है। जब वो लश्कर निकला, अब लश्कर की ही बात चल रही है ना, वो कुफर का लश्कर जो शान शौकत दबदबे के साथ आया, अब उसी की बात कह रही है, कही जा रही है कि ये लोग जब आए थे तो कैसा आए थे। और वो वक्त भी काबिल जिक्र है, जब तुम याद करो कि जब शैतान ने इन काफिरों को ये समझाया था कि उनके अमल बड़े खुशनुमा हैं, ये तुम जो कर रहे हो ना, अल्लाह के रास्ते से रोकने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जंग करने के लिए जो जा रहे हो, बड़ा कमाल का काम कर रहे हो, बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो। क्या कर रहा है इन्हें? आपको एनकरेज कर रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है उनको, और उभार रहा है। और ये कहा था कि आज इंसानों में कोई नहीं है जो तुम पर गालिब आ सके, ला मगलूब कोई नहीं आ सकता। तुम्हें ही ऊंचे रहोगे, तुम्हें गालिब रहोगे, तुम्हें ही गलबा हासिल होगा, तुम ही फतेहयाब होगे। अब तुम्हारे ऊपर कोई आज नहीं आ सकता। और मैं तुम्हारी कोई, और तुम्हारी मैं मदद करने वाला। क्या बोल रहा है? आमालहुम, उनके आमाल को, वो इस, और जब ज़य्यना खुशनुमा कर दिया, लहुम उनके लिए, शैतानु शैतान ने, आमालहुम उनके अमाल को, ये जो भी कर रहे हैं उनको इन्हें खुशनुमा बना को दिखा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, उभार रहे हो उनको, उनके काम। वो खाला ला गालिबा, और कहा उसने के कोई गालिब नहीं आएगा, लकुम तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे ऊपर कोई गलबा नहीं आता, तुम ही गालिब रहोगे। अल यौमा, आज के दिन, यानी जंगे बदर के दिन, आज, मिनन्नास लोगों में से, और इन्नी, और यकीनन मैं, जार, जार किसे बोलते हैं? जार पड़ोस को बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है? साथी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लकुम तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, यानी जंग में शरीक हुआ इन्हें। अब इसका एक वाकया आता है, मैं बयान करती हूँ भैया थोड़ा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे लश्कर के साथ चलूंगा। ये शैतान के रूप में नहीं आया। ये कैसा आया मालूम है? एक काफिला जिसका जो दुश्मन था, अबू जहल भी एक खौफ खाता था कि ये जो काफिला, बकर काफिला, ये खानदान बकर जो है, कबीला बकर,
इससे दुश्मनी थी, इन लोगों की पुरानी दुश्मनी थी, साल साल की जैसा सदियों की दुश्मनी चलती थी उनमें दौरे जहालत में, तो ये दुश्मनी थी। और इसे एक खदशा था कि देखो ऐसा होगा, अब हमें सब निकल जा रही, 70 सरदारान, बड़े बड़े सरदारान निकल जा रही, अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का निजाम कौन संभालेगा, उतनी दूर का सफर है, फिर जंग कितनी देर होगी, कितने दिन होंगे, कितने दिन वहां रुकना होगा, फिर वापस आए तक क्या हमारे पीछे ये अगर बकर का ये जो कबीला है, इन्हें अगर हमारे जानो माल पर, हमारे औरतों पर, हमारी बच्चों पर अगर धावा बोल दिया, अगर हमलावर हुआ, कोई जख्म पहुंचाया, तो क्या होगा। इनको खौफ था, खदशा था। तो इन्हें क्या करता है, वो खदशा दूर करने के वास्ते शैतान ने, कहीं ये लोग रुक ना जाए, जंग ना होने पाए, क्या ऐसा कुछ हो जाएगा बोल को, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें क्या रूप में आता है, सुराखा बोल को एक बकर के कबीले का एक सरदार होता है, बहुत से सरदार रहते हैं, उसमें से एक सरदार सुराखा नाम भी होता है। उसके रूप में आकर, उसके जैसा ही बनकर आकर उन्हें क्या बोलता है, तुम्हें हमारे से डरो नको, हमारे कबीले से जाओ, हमें भी उनके दुश्मन है। किसके दुश्मन का दुश्मन है, दोस्त नहीं आपस में, हाँ, तो हमें भी दुश्मनी चुनके तुम्हें उनके साथ जंग लड़ने जो जा रही हैं, तो हम तुम्हारे कबीलों को या तुम्हारे खानदानों को कोई इज्जत नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम उनके साथ रहेंगे। अब मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तो सुराखा बनकर आ रहा है वो। उसके बाद क्या करता है, आगे का हाल भी मालूम हो जाता है। जारुल लकुम, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, फलम्मा, फिर जब तराअती, तरा आमने सामने हुए, अल्फितानी, अल्फिअतानी, फियातान तस्निया का सीगा, दो ग्रुप्स, यानी इस्लामी लश्कर और कुफार का लश्कर, दोनों लश्कर आमने सामने हुए, नकसा, उल्टा फिर गया, नकसा बोले तो तोड़ना, यानी वहां से कट गया, उल्टा फिर गया। कई को उल्टा फिर गया, आगे आ रहा है देखिए, वो अला पर, अखी बही, अपनी येड़ियों पर, अपने उखत के बल उल्टा फिर गया। वो काला, कहने लगा, इन्नी, बेशक मैं बरी उन, जुदा होता हूँ, ला ताल्लुक होता हूँ, मैं कट कर रहा हूँ तुम्हारे से रिलेशन, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मिनकुम, तुमसे मैं अलग हो रहा हूँ। इन्नी अरा, मैं बेशक देखता हूँ, मा ला तरोना, जो तुम नहीं देखते। क्या देख रहा है शैतान, क्या देख रहा है, इन्नी अखाफुल्लाह, अल्लाह से मैं डरता हूँ, वल्लाहु शदीदुल इकाब, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है, मैं डरता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है इसको, बदर में क्या हुआ, नाजिल हो रही फरिश्ते, फरिश्तों का लश्कर नाजिल हो रहा है। अभी ने पहले तो इसे मालूम नहीं था, सुराखा बन को आया और कहा कि अच्छा मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ खौफ खाने की जरूरत नहीं, और तुम्हारे से तुम्हारे एब्सेंस में यहाँ कोई तकलीफ तुम्हारे खानदान वालों को होने वाला नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हो रहा हूँ, हमारा भी दुश्मन है वो, हम सब मिलकर लड़ेंगे, तो साथ आता है। बाद में वहां जाकर जो देखता है, आमने सामने जो कन्फ्रंट हो गए लश्कर दोनों, तो वहां नुजूल शुरू हो गया, किसका किसका नुजूल शुरू हुआ, अल्लाह, फरिश्तों का नुजूल। फरिश्ते आ रहे नहीं मदद को, जंगे बदर में कितने फरिश्ते आए, अल्फा, हजारों के, 1000 का दस्ता पहले हजार भेजा का, अल्लाह, फिर और 1000 हजार का भेजा, फिर और 1000 का, कितने आए, 5000 का। अब फरिश्ते नाजिल हो रही, सो किसे नजर आ रहा है, शैतान को नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है शैतान को, इनको नहीं नजर आ रहा है ना, कई को, ऑलरेडी देख को है ना उन्हें, नारी मखलूक है, हाँ राइट, यू आर राइट। हाँ आसमान में पहले था नहीं, अब ना उतरे उन्हें मरदूद होकर, अल्लाह उसे मरदूद कर को नीचे भगा दिया, जा तो उतर बोल को। तो ये नारी मखलूक और नूरी मखलूक में थोड़ा बहुत ये है, पहले साथ थे उन्होंने, उसे मालूम है फरिश्तियां का नुज़ूल उसे दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है, इंसानों को नहीं दिख रहा है। एक शेर याद आ रहा है, किसका शेर है ये, अल्लामा इकबाल का, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। नारी है। ये नूरी जो है, नारी जो है, ये मलाइका जो है उन्होंने बालातर है, और ये नारी भी क्या है, खुद को बहुत बड़ा समझता था, नहीं सजदा नहीं करे ना, वो खाकी मखलूक है, मट्टी से बनाया हुआ, मैं नारी मखलूक हूँ, आग से बनाया हुआ, मैं कैसा करूँ सजदा। और अल्लाह को भी बोलता है, अल्लाह तुझे मालूम है, मेरे दिल की हालत तुझे मालूम है, मैं नहीं सजदा करता इसे, ये भी तुझे मालूम है, फिर भी ऐसा हुक्म क्यों दिया तू मुझे, जिसका मैं हुक्म अदौली कर बैठता हूँ, जिसको मैं मान नहीं सकता वैसा दिया ना।
ऐसी हुज्जत करता है अल्लाह के साथ। तो यहाँ क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, फरिश्तों के लश्कर उतरती, अब उतर रही। अब तुम खाने वाले शिकस्त, मैं गया तुम्हारे साथ, मैं नहीं हूँ, ये बोल कर वो अलग हो जाता है, शैतान अलग हो जाता है। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह शदीदुल इक़ाब, वो बड़ा सख्त है, बड़ा जबरदस्त है और बड़ा सख्त है अजाब देने में भी। तो ये जंग का हुआ, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं जंग के मुतल्लिक़, लेकिन उसकी बात नहीं आई थी ना, जो शैतान हो लिया था उसकी बात नहीं आई थी शायद। नहीं आई थी, नहीं आई थी। नहीं ये आई। शैतान हो पाता है, और नहीं। शैतान क्या करता है, सुराखा केस में आता है और इन लोगों को भेष में आता है। शैतान भी साथ रहता है इनके, मगर भाग जाता है बाद में। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून अल्लज़ीना क़ुलूबुहुम, इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन गर्र हाउलाइ दीनुहुम। कौन कर रही है, मुनाफिकीन कह रही है, ये देखो ये दीवाने बेवकूफ, नरे बेवकूफ, क्या हिमाकत है इनकी, क्या जसारत है इनकी। इनको तो मालूम ना 313 ही जा रहे हैं और वहां 1000 का आया है। तो ये मुनाफिकीन क्या कह रहे हैं, देखो इनकी हिमाकत, देखो कैसा जा रहे हैं। इनके दीन ने इनको, इनकी आंखें अंधी कर दी हैं, इनको नजर नहीं आ रहा है। गर्रा बोले तो क्या, गर्रा मगरूर कर देना या कुछ धोखे में डाल देना। इनका दीन इनको घमंड में डाल दिया है। ये दीन के ऊपर इतना इतरा रहे हैं कि कैसा ये ले रहे हैं, क्या लेना, पंगा लेना। कैसा पंगा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कुफ्फार मक्का से, हजार के लश्कर से। ये कह रहे मुनाफिकीन, इज़ यक़ूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन गर्र हाउलाइ दीनुहुम, इनके दीन ने इनको घमंड में डाल दिया। ये मुनाफिकों की बात है। ओ मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह कह रहा है। और याद करो वो वक्त जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में रोग था, मर्ज था, यानी उनका सही क़ल्ब होने के बावजूद इन्हों क्या करते थे, सामने कहते थे कि हम मुसलमान हैं और पीछे जाकर धोखा ही कहते थे। और ये कि इन मुसलमानों को उनके दीन ने धोखे में डाल रखा है। इनका हाल ऐसा हो गया है कि मरने मारने पर तुल गई। ये भी देखते नहीं कि सामने कौन है, कुफ्फार लश्कर कुरैश, उनके साथ पंगा ले रही। जब मुसलमानों ने बेसरो सामानी की हालत में इतने बड़े लश्कर से टक्कर ले ली, तो मुनाफिकीन ने कहा था कि ये अपने दीन के घमंड में बड़ा धोखा खा रही है। गर्रा बोले तो धोखा, बड़ा धोखा खा रही है, घमंड है इनको दीन का। हमें ये हो जाती है, हमें बालातर होती है, हमें ही कामयाबी होती है, इनको एक धोखा है, इनके दीन ने डाल दिया है। इनमें कुफ्फार मक्के का मुकाबला करने की ताकत नहीं है, फिर भी ये लोग टक्कर ले रहे हैं। इनके दीन ने इनको धोखे में डाल दिया है। ये मुनाफिकों की बातें हैं। हालांकि जो कोई, अल्लाह कह रहा है, अभी अल्लाह की बात है ये, हालांकि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह सब पर गालिब है, अल्लाह काफी है हमारे लिए। नेमल मौला और नेमन नसीर, हस्बी अल्लाह हस्बुनल्लाह, अल्लाह काफी है हमारे लिए। बड़ी हिकमत वाला है अल्लाह। अल्लाह जो चाहे जिसको चाहे दे दे, जैसा चाहे दे दे। उसको कोई असबाब की जरूरत नहीं है, वो खुद मुसब्बब है, उसको असबाब की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी तादाद की जरूरत नहीं। कितनी ही तादाद हो, अल्लाह चाहे तो उसे कामयाबी दे दे, उसका पल्ला भारी कर दे, उसे ही आला कर दे। अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही ऊंचे रहोगे अगर तुम मोमिन हो। आज भी यही रूल है। आज भी अगर सच्चे मोमिन हैं, शिर्क नहीं, कुफ्र नहीं, कोई खराफात नहीं, कोई बिदात नहीं, तो हमारा ही पलड़ा भारी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे। आमीन। कुछ कह रहे थे आप? आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम।